Hallelujah. So let's just open Isaiah 40 verse 28. यशाया की किताब उसका 41वां पद. We have been studying about that we have to declare the prophecies of God. हम सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर की भविष्यवाणियों को अपनी जिंदगी में की घोषणा करनी चाहिए. And we'll go more further into that. और हम उसमें और गहराई में चलेंगे. Before that, let's open Isaiah 40 verse 28. इससे पहले कि हम 41 पे जाएं, हम खोलेंगे यशाया की किताब उसका 40वां अध्याय उसका 2 पद. It says, do you not know, do you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither he is weary, there is no searching for his understanding. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वे ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है. When I was reading this yesterday night, जब मैं कल रात इसको पढ़ रहा था, I believe it's for our people. मेरा विश्वास है कि हमारे लोगों के And लिए. God is saying, और परमेश्वर कहता है, have you not known, क्या तुम नहीं जानते, have you not heard, क्या तुमने नहीं सुना, the everlasting God, सनातन का परमेश्वर, the Lord, यहोवा, the creator of ends of the earth, पृथ्वी का बनाने वाला, neither faints ना थकता है nor is weary. ना श्रमित होता है, His understanding is unsearchable. उसकी बुद्धि अगम है. What he is saying, वो क्या कह रहे हैं? what God is saying to you, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? have you not known, क्या आपको नहीं पता, have you not heard, क्या आपने सुना नहीं the है? everlasting, सनातन the परमेश्वर, Lord, परमेश्वर, the creator of ends of the earth, पृथ्वी का सृजने वाला, neither faints or is weary. ना थकता है ना श्रमित होता है, His understanding is unsearchable. उसकी बुद्धि का अंत नहीं है. What God is reminding you, आपको क्या याद दिलाना have you चाहता heard है? about this, आपने इसके बारे में सुना है that your Lord, कि आपका he परमेश्वर never sleep, वो कभी सोता नहीं he है, never faint. वो कभी थकता नहीं Do है. you believe this? क्या आप इस बात पर विश्वास करते Do you हैं? believe this? क्या आप विश्वास करते You हैं? have the Lord, आपके पास ऐसा परमेश्वर he है, never sleep. वो कभी सोता नहीं है. In day and night, दिन और रात he is watching over you. वो आप पे नजर रखता है. Personally, he comes और आपके पास व्यक्तिगत रूप से वो आता and he है, watch over you. आपको देखता है. There is no greater miracle than this. इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है. Just imagine, सोच के देखिए, you are sleeping on your bed आप सो रहे हैं अपने बिस्तर and पे your God और आपका is परमेश्वर watching over you. आपके ऊपर नजर रखा हुआ है. Just imagine, सोच के देखिए, he personally comes वो व्यक्तिगत रूप से आपके पास and he आता है, takes care of you. आपका ध्यान रखता है. So in this life, when you live, और आप जब इस जिंदगी में जी रहे हैं, there is no chance that you will be alone. ऐसा कोई समय नहीं है जब आप अकेले हैं. There is no time that you will be alone. ऐसा कोई समय नहीं है जब आप अकेले हैं. It is not possible. ये हो नहीं सकता. Tell yourself it is not possible अपने आप से कहिए ये हो नहीं सकता that my God will leave me. कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ He दे. always watches over me. वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है, He always takes care of my वो life. हमेशा मेरा ध्यान रखता है. And he is my Lord. वो मेरा परमेश्वर है. And it says his understanding is unsearchable. और लिखा है कि उसकी बुद्धि अगम है. He gives power to the weak वो कमजोर लोगों को बल देता है. and to those who have no might. उनको जिनके पास शक्ति नहीं है उनको वो पावर देता He है. increases the strength. वो हमारी सामर्थ्य को बढ़ाता है. Even the youth shall faint जबकि जो जवान है वो गिर जाएं, and be weary, थक जाएं, and the young man shall utterly fall. जो जवान है वो चाहे गिर भी जाएं, But those पर वो who wait on the Lord जो परमेश्वर पर ध्यान रखते हैं shall renew their strength. उनकी सामर्थ बढ़ती It जाएगी. says, but those who wait on the Lord, पर वो जो परमेश्वर पर अपना ध्यान रखते हैं, how many are waiting on the Lord? बात जोड़ते हैं. How many are waiting on the Lord to do something in your life? ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं? Like seriously, you have been waiting. क्या आप सीरियसली उसकी बात जो रहे हैं? This word is for you. ये वचन आपके लिए So है. as I declare, मैं इस बात की घोषणा you करता हूँ, have to receive it. आपको इस बात को रिसीव करने की It जरूरत है. says, ये ऐसे कि लिखा है, but those who wait on the Lord परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करते It जाएंगे. says, the one who wait on the Lord लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते shall हैं renew their strength. उनका बल नया होता जाएगा. Declare for your life, अपने बारे में इस बात की as घोषणा I wait कीजिए. on the Lord, जब मैं परमेश्वर की I बात am जो रहा हूँ, growing in the strength. जब मैं परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ रहा हूँ, Declare as you believe, as I wait on the Lord, जब मैं परमेश्वर की बात जो रहा हूँ, I am going to increase in my strength. मेरी सामर्थ बढ़ती जाएगी. I will mount up with the wings like an eagle.
मैं उकाब की तरह उड़ूंगा and they shall run और मैं दौड़ूंगा and not be weary, और मैं थकूंगा नहीं, and they shall walk और वो चलेंगे and not faint. पर थकेंगे नहीं. It says there is other translation, they will soar. Okay, it's not. So if you have seen the eagle doesn't fly, right? अगर आपने उकाब को देखा हो तो वो उड़ता नहीं है, He soars. वो सिर्फ अपने पंख फैला के Crow, they बढ़ता है. fly. Crow, जो they, कौवे हैं वो उड़ते हैं, other birds, they fly. बाकी जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, But eagles, पर जो ईगल है, जो they उकाब है, soar. वो सिर्फ फैलते हैं अपने And पंख फैला they के don't बस fly like at low level, वो बहुत नीचे स्तर पर नहीं उड़ते, but they fly high. वो बहुत ऊंचे पे उड़ते What हैं. God is saying, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? those who wait on the Lord, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं. have you waited on the Lord? अगर आप परमेश्वर पे इंतजार कर So रहे हैं, what God is saying, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? you're not gonna just fly, आप सिर्फ उड़ेंगे नहीं, you're gonna soar. आप अपने पंख फैला के You're gonna soar. आप उड़ेंगे, You're gonna soar. आप उड़ेंगे. So this is for you. ये आपके लिए है, So this is for you. ये आपके लिए है. No matter what you go through. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The आप God जिंदगी में who does not faint or sleep or does not take rest, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस सिचुएशन से जा रहे हैं. वो परमेश्वर जो ना सोता है, ना थकता है, ना ऊँगता है, He's gonna take you on the high. वो आपको ऊंचे पे लेके जाने वाला No है. matter what is your age, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, what is your past, आपका पास्ट क्या था, what you are going through. आप किन चीजों से निकल You रहे हैं, have finances or you don't have finances. आपके पास पैसा है कि नहीं है, You have good relations or you don't have good relations. आपके अच्छे संबंध है या नहीं The है. God who called you जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया is है, faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास So योग्य है. from this morning, तो आज की सुबह से I want you to see yourself as of soaring. अपने आप को ऐसे देखिए जैसे उकाब उड़ता है, As you're soaring. जैसे आप ऊंचाई पर हो. Because it's very important in believers' life. विश्वासियों की जिंदगी में ये बहुत जरूरी है. What you see. आप क्या देखते हैं, What images you carry in your mind, in your heart. आपके मन में कैसी आपके बारे में छवि है, इससे बहुत फर्क पड़ता What है. you're beholding. आप कैसा देखते हैं तो बहुत फर्क Because पड़ता है. what you behold, क्योंकि जो आप देखते हैं you will become. वही आप बनते हैं. You're getting this? आपको What you समझ में- behold, जो आप देखते हैं you will become. वही आप बनते हैं. Many times we just behold what we go through. हम कई बार सिर्फ वही देखते हैं जिसमें से हम होकर जा रहे As होते a हैं. human, our mind is trained to think negative first. हम एक इंसान होने के नाते सबसे पहले हम नेगेटिव चीजें ही सोच Do you पाते हैं. believe this? हम ऐसा आप Have मानते you हैं? been into that place that you first think negative? आप I कभी personally, if you are not raising your, I know your life. आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि I'm lifting my both hands because I know how human mind is trained. जब हम मुश्किल समय से निकलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं. आप इस बात पे विश्वास करते हैं? I personally होता है? believe. अ, So we have to change our mind to the word of God. हमें अपने मन को बदलने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार. It's very important how God sees us. इस बात पे ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमको कैसे देखता है. Let's open Isaiah, यशाया Isaiah 41, उसका 41वां पद verse वर्ष 14. उसका 14वां पद. Fear not, you worm Jacob, you men of Israel. I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel. हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो. यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा. इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. What is saying? Fear not, worm Jacob. ठीक है, हे कीड़े सरीखे याकूब. What is saying to Jacob? वो याकूब को क्या कह रहा है? Worm. कीड़ा. Have you seen the worm? आपने वर्म देखा, कीड़ा Can देखा you है? show the worm how it looks? आपने देखा कीड़ा कैसा दिखता है? See, just imagine how Jacob is, how God is saying. We cannot, actually we cannot see also this. But what is saying? You worm Jacob. Change it. लिखा है कीड़े सरीखे याकूब. तो याकूब You men of Israel, I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel. लिखा है यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा. इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. And 15 it says, Behold, I will make you into new threshing sledge with sharp teeth, and you shall thresh the mountains and beat them small. देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है. तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर
सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। What is it? Behold, देख, I will make. मैं तुझे बनाता हूँ। So our God, the beautiful thing of our God, परमेश्वर की सबसे खूबसूरत बात क्या है? He does not recycle. वो चीजों को रिसाइकल नहीं He करता, make. वो नया बनाता है, He is the God of creation. वो क्रिएट करता है। वो बनाता है. यस, So what he is saying, वो क्या कह रहे हैं? I will make. मैं बनाऊंगा। So for your life, what he is saying, आपकी जिंदगी के बारे में वो क्या कह रहे हैं? I will make a new sharp threshing, वो कह रहे हैं मैं नया यंत्र बनाऊंगा, instrument of having teeth. ऐसा यंत्र जिसके दांत होंगे। See, Jacob is, let's leave Jacob. How you are seeing your life? जेकब को छोड़िए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? Are you seeing as a worm, आप अपने आप को एज अ कीड़े की तरह देखते हैं, as a failure, एक फेलियर की तरह देखते हैं, as a sick, बीमार की तरह देखते हैं, as what you go through? जिस चीजों से आप निकल रहे हैं उसकी तरह देखते हैं? But what did God is saying? पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? I will make. मैं बनाऊंगा, I will make. मैं बनाऊंगा। What? The sharp threshing instrument having teeth. एक ऐसा तेज यंत्र जिसके दांत होंगे, Thou shalt thresh the mountains जो पहाड़ों को सूक्ष्म कर देगा and beat them small, और उनको तोड़कर छोटा छोटा कर and देगा shall make the hills as chaff. और उनको काफ, भूसे के समान कर काफ। देगा। So what does it look like? तो ये कैसा दिख रहा है आपके? आप समझ पा रहे हैं? To destroy the mountain, पहाड़ों को तोड़ने के लिए do you think the teeth of worms are enough? आपको लगता है वो जो कीड़े की हम बात करते हैं उसके दांत काफी हैं पहाड़ So को तोड़ने what? के लिए? How God was seeing? तो परमेश्वर कैसे देख रहा है? Just show next image. See, we know. See how God is seeing. देखिए परमेश्वर कैसे देख रहा है It याकूब has को। strong, big teeth. इसके दांत हैं, Is that ability to destroy mountain. इसके पास सामर्थ है पहाड़ों को So- तोड़ने की। As a believer, when we live, विश्वासी के तौर पे जब हम जिंदगी जीते हैं, are you seeing yourself as a worm, अपने आप को आप कीड़े की तरह देखते हैं or as you are seeing yourself as destroying mountain like a bulldozer? या आप अपने आप को ऐसे बुलडोजर की तरह देखते हैं जो पहाड़ों को नाश करने की सामर्थ It's रखते हैं? very important what you see. ये बहुत जरूरी है समझना कि आप कैसे देखते हैं। Sometimes we see ourselves as a worm. हम कई बार अपने आप को एक कीड़े की तरह देखते अरे हैं। हो रहा ही नहीं है। हो ही नहीं। हम सोचते हैं अरे प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा ही नहीं है। Yes. We think that we are praying but nothing is happening. हम सोचते हैं हमने फास्टिंग किया, कुछ हो रहा ही नहीं है। We think that we fast, still nothing is happening. But how God is saying? But परमेश्वर क्या कहते हैं? God is seeing as you can destroy the mountain. परमेश्वर कह रहे हैं कि आप वो हैं जो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय You कर have the ability to conquer every giant. सकते हैं। आपके पास वो काबिलियत है कि आप बड़े से बड़े दानव पर भी So when God बता looks सकते at हैं। you, जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, when God looks at you, जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, verse 41, आप verse 15, वो आपको 15वें पद की तरह behold, देखते हैं। I will make you into new threshing sledge देखो मैं तुम्हें छुरीदार दावने का एक नया और चोखा यंत्र with sharp teeth. जिसके काफी शार्प दांत होंगे। You shall thresh the mountains and beat them small, तू पहाड़ों को दाएं दाएं सूक्ष्म धूलि कर देगा and make the hills like a chaff. और पहाड़ियों को तू क्या? भूसे के समान कर देगा। So we ourselves, we when we live, जब हम जीते हैं we need to see ourselves as what word of God is saying. तो हमें अपने आप को वैसे देखने की जरूरत है जैसे परमेश्वर का वचन कहता First, है। for the Jacob, it's written, you worm, Jacob. पहली जो बात लिखी है 14वें पद में लिखा है तू कीड़े समान याकूब। It might be he might have thinking about himself. हो सकता है वो अपने बारे में ऐसा सोच रहा हो, But when God makes, पर जब परमेश्वर बनाते हैं God is not saying, I will increase the strength to that worm. वो ये नहीं कह रहे कि मैं उस कीड़े को की सामर्थ को बढ़ा दूंगा। I will make you new. वो कह रहे मैं तुझे बिल्कुल एक नया बना दूंगा। So when we live as a believers, जब हम विश्वासी की तरह जीते हैं, that's why God gave us a new body. इसलिए परमेश्वर ने हमें एक नया शरीर दिया In है। this body, इस शरीर में total ability is changed. सब कुछ बदल गया है, Total mindset is changed. पूरा माइंडसेट बदल गया है। When we receive Jesus, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते you हैं, have something more stronger. आपके पास बहुत सामर्थ्य कुछ आ जाता है। Can you just compare worm to the bulldozer? क्या आप कल्पना कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं उस कीड़े की उस बुलडोजर के साथ, That I will make this from worm to the bigger thing which can destroy the mountain. कि मैं इस कीड़े से एक बड़ा बुलडोजर जैसा बनाऊंगा जो पूरे के पूरे पहाड़ों को ढाने की सामर्थ रखता है। That's how the Lord has made us. ऐसा परमेश्वर ने हमको बनाया है। We sometimes think as a human,
हम कई बार अपने आप को एक इंसान की तरह सोचते हैं, But the power of God, the ability which God has given to us in new creation lifestyle पर जो परमेश्वर ने हमको नए क्रिएशन में जो हमको सामर्थ्य दी है is totally वो different. बिल्कुल अलग है, It's totally वो different. बिल्कुल अलग है। So when the mountain comes before you, तो जब आपके सामने पहाड़ आए, every ability is already there for you. उसको ढाने की सारी काबिलियत आपके पास It's just already you है। have to start your engine and work. आपको सिर्फ शुरू करने की जरूरत है, That engine is the engine of faith. और वो जो इंजन है जिसको आपको शुरू करने की जरूरत है वो When आपका you विश्वास start है। believing, जब आप विश्वास करते हैं, that mountain will disappear. वो जो पहाड़ है वो वहां से गायब हो You जाएंगे। believe? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Are you worm or are you like a bulldozer? आप वो कीड़ा हैं या वो बुलडोजर हैं? How many wants to be a worm? कितने लोग हैं जो वो कीड़े की तरह जीना चाहते हैं? No one. कोई भी नहीं, But we want to be a greater and mightier. पर हम चाहते हैं कि हम सामर्थ्य हों और बड़े हों। So there are two images. तो हमारे सामने दो No. इमेजेस हैं, There are two mirrors. दो शीशे हैं। Bible says the word of God is mirror परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दर्पण है, परमेश्वर का वचन दर्पण है, and we see the natural mirror. और एक नेचुरल जो नॉर्मल दर्पण होता है, शीशा होता है, वो है। The mirror, the true mirror is the word of God for the believer. जो विश्वासी के लिए सही मायने में दर्पण है वो ये वचन है। So let's just for example, फॉर एग्जाम्पल, see these two are mirror. ये दोनों शीशे हैं। This is a natural mirror. ये एक नॉर्मल मिरर है This is the word of God mirror. और ये परमेश्वर के वचन वाला। So what is Satyansh? The natural mirror. सत्यांश कौन है? जो एक दर्पण है जो नेचुरल है। The natural mirror Swabhavik. always shows हम्म। who you are at present. और जो नॉर्मल शीशा होता है वो दिखाता है जो हम होते हैं, The mirror of the word of God, पर जो परमेश्वर के वचन का दर्पण है it always show who you will become. और वो दिखाता है कि आप क्या बनने पर हैं। When you look at this mirror, जब आप दुनिया वाले मिरर की तरफ देखते हैं you will always see, अरे यार, this mistake, अरे this is not perfect, this is not happening. तो जब आप उस शीशे में देखते हैं तो आप देखते हैं कुछ पर अच्छे से नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं है। But when you look at the word of God, पर जब आप परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं it will always show who you will become. वो आपको हमेशा दिखाएगा कि आप क्या बन सकते So हैं। as a believers, तो एक विश्वासी के तौर पे to see in the mirror of the word of God is very important. अपने आप को परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखना बहुत जरूरी है। Because this mirror is like me. ये जो स्वाभाविक शीशा है वो है जो मैं हूँ, But when you see in this mirror, पर जब आप परमेश्वर के वचन वाले दर्पण में you देखते हैं become like a mirror. तो आप एक दर्पण की तरह बन जाते You're हैं। getting it? Like when you see naturally in the mirror, जब आप स्वाभाविक शीशे में देखते हैं, it's who you are ये at वो है present. जो आप हैं अभी प्रेजेंट में जो आप हैं वो But दिखता है। when you take your eyes to the mirror of the word of God, पर जब आप अपनी नजरों को घुमाकर परमेश्वर की वचन की ओर लेके you आते हैं become like a word of God. तो आप परमेश्वर की वचन की तरह बन जाते हैं। You become who God has made you. आप वो बन जाते हैं जिस पर जो आपको परमेश्वर ने बनाया है। This mirror will show you are like a worm. ये वाला जो दुनिया का जो शीशा है वो आपको कीड़े की तरह दिखाएगा। It will show you are nothing. आपको दिखाएगा कि आप कुछ भी नहीं है, You don't have ability. आपके पास कोई योग्यता नहीं It है। will show it will not happen. ये दिखाएगा कि ये नहीं हो सकता। It will show this bank is not giving loan. ये दिखाएगा कि ये बैंक आपको लोन नहीं देगा। These people are not helping me. ये लोग जो है ये तेरी सहायता नहीं करेंगे। This mirror will show nothing is working. ये शीशा आपको दिखाएगा कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, Every day is crying. हर दिन रोने की बात But है। when you change your eyes to the word of God, पर जब आप अपनी नजरों को शिफ्ट करते हैं परमेश्वर के it वचन की ओर, shows you who you are. दिखाता है वो कि आप कौन हैं। It shows you are more than conqueror. वो आपको दिखाता है कि आप सामर्थ्य हैं और आप This mirror will say people are not helping. ये दिखा रहा है कि लोग आपको सहायता नहीं कर But रहे। when you look to the mirror of the word of God, पर जब आप परमेश्वर के वचन के you दर्पण की ओर can देखते हैं, boldly say, आप इस बात को पूरी सामर्थ्य से my कह सकते help comes from the Lord. हैं। आप कह सकते हैं पूरी बोल्डनेस के साथ कि मेरी When you सहायता look to परमेश्वर this की ओर से mirror, आती है। जब आप दुनिया के शीशे को It देखते will हैं, show you lack. ये दिखाएगा कि आपके पास कमी है। But when you see the mirror of the word of God, पर जब आप परमेश्वर के वचन के दर्पण में it देखेंगे, will show you on the cross Jesus already became वो poor. आपको दिखाएगा कि क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए गरीब बन चुका है। So if you are taking notes, write it down. अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो प्लीज इस बात को लिखिए। From now, अभी से I will look into the mirror of the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखूंगा। I will trust in the mirror of the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के दर्पण पे विश्वास करूंगा। My life final answer is the word of God. मेरी जिंदगी का जो फाइनल आंसर है वो परमेश्वर के वचन से I आएगा। will not walk naturally, मैं नेचुरली नहीं चलूंगा, but I will walk as Lord has made me. मैं वैसा चलूंगा जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। So I pray, तो मेरी ये प्रार्थना है, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ when we go out of this room जब today, मैं इस कमरे से बाहर हम जब इस कमरे से बाहर जाएं we will have
our eyes set on the mirror of the word of God. हमारी आंखें परमेश्वर के वचन के दर्पण पे That fix हो our जाएं। mind will think about the word of God. हमारा दिमाग परमेश्वर के वचन के बारे में That सोचने I लगे। will not be worried from now, मैं चिंता ना करूं, but I will kill as a bulldozer. मैं अपने आप को मैं बुलडोजर की तरह, I will destroy the situation as a bulldozer. मैं सिचुएशंस को वैसे खत्म कर दूं जैसे बुलडोजर करता है। I will not believe what I see, मैं उस पे विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देखता हूं, but I will see what is unseen. मैं वो देखूंगा जो नहीं दिखता। I will not see myself as a failure, मैं अपने आप को एक फेलियर की तरह नहीं देखूंगा, but I will see myself as a successful. मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखूंगा। But your life, you will say, Pastor, my life is saying this. पर आप कहेंगे कि पास मेरी जिंदगी तो यही कह रही I है, am going through this. मैं इस सब से होके जा रहा हूँ। The answer is पर इसका जवाब है just start believing in the mirror of the Lord. परमेश्वर के वचन के दर्पण पर विश्वास करना शुरू कीजिए। If you see nothing is happening, अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, in word there is an answer. परमेश्वर के वचन में उसका God जवाब will है। give best. परमेश्वर आपको बेहतर देगा। एक मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, ये चीज मेरे जीवन में नहीं हो रही है, दिस इज नॉट हैपनिंग इन माय लाइफ, परमेश्वर के वचन में आंसर है. देयर इज एन आंसर इन द वर्ड ऑफ So गॉड। as long as you live, तो जैसे आप जीते हैं, you will not walk as a natural, आप स्वाभाविक रूप से नहीं but जिएंगे, you will think beyond supernatural. आप सुपरनैचुरल चीजों पे You जिएंगे। will not trust in your experiences. आप अपने एक्सपीरियंस पे, अनुभवों पर विश्वास नहीं You will करेंगे, not trust in your past, आप अपने पास्ट पर विश्वास नहीं but करेंगे, you will trust in the word of God. आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास Because करेंगे। what God says क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता is है final. वो फाइनल होता Do you है। believe? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? What God says जो परमेश्वर कहते हैं is final. वो फाइनल होता है। So as you learn to see yourself, to look into the word of God, तो जैसा आप सीख रहे हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के I दर्पण believe में your देखेंगे, life will be changed. आपका जीवन, मेरा विश्वास है, बदल जाएगा। Let's open Genesis 13 verse 14. उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय उसका 14वां पद। There was a time when Abraham and Lot had a problem. एक समय था जब अब्राहम और लूत के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। Let's open 14. तब लूत अब्राहम से अलग हो गया और उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। And Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. So what God said first thing? तो परमेश्वर ने पहले क्या कहा? Look. कहा देख। See, He is God. वो परमेश्वर है, He can give directly. वो दे सकता है बिना Do you कुछ believe? बोले। वो बिना कुछ बोले आपको I don't दे need सकता to है। see. मुझे देखने की जरूरत नहीं है, He will give. वो दे सकता है। I don't need to pray. मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं If He है, desire, He will give. वो दे सकता है। But for Abraham, what he did? पर उसने अब्राहम से क्या कहा? He said, look. उसने कहा देख। What he said? Look. कहा देख। Why did God said look? परमेश्वर ने क्यों कहा देख? He said look so that he can conceive what he is seeing. उन्होंने इसलिए कहा देख ताकि वो उस बात को अपने अंदर ले सके कि वो क्या देने पर See, है। many times we see the promises of God. हम कई बार परमेश्वर के वादों को देखते We हैं, receive the prophetic word. हमें भविष्यवाणी के शब्द मिलते And हैं we know by faith that it's going to happen. और हम विश्वास करते हैं कि ये होगा। But when it will manifest? पर वो होता कब है? When you will behold what you are seeing. वो तब होता है When you are seeing what is declared. जब आप उस चीज को देखने लगते हैं जो आपके लिए कहा गया है। When you start imagining what is already declared. जब आप उस बात की कल्पना करने लगते हैं अपने मन में जो आपके लिए कहा गया है। He तब होता said है। look उसने कहा देख so that he can conceive first. ताकि वो पहले उस चीज को अपने मन में धारण कर सकता, Conceive that image. वो उस इमेज को अपने मन में रख सकता कि वो क्या देख See रहा है। how I see? मैं कैसे देख रहा हूँ? Let's open verse 15. 15वें पद को पढ़ते हैं। And for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। What God is saying, what you are seeing, that I will give you. कि जो कुछ तू देख रहा है वो मैं तुझे दूंगा। It means इसका मतलब if you see it, अगर आप इसको देखते हैं you will get it. आप उसको ले पाएंगे। What God said first? परमेश्वर ने क्या कहा पहले? Look. देखो। And when he saw, जब उसने देखा God said, what you are seeing it?
और परमेश्वर ने कहा जो तू देखता है you will get it. वो तू पाएगा। So how we can apply in this our life? इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? Personally, I do this. मैं क्या करता हूँ, I start whenever I receive the word or I read the word of God, मैं जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ I start seeing, मैं उसको देखने लगता I हूँ, start imagining, मैं उसको इमेजिन करने लगता and हूँ that boosts my faith more. और वो मेरे विश्वास को और बढ़ाता In है। every situation, हर सिचुएशन में I try to see what God is doing. मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ जो परमेश्वर कर रहा है। I try to conceive and behold that image what God is saying. मैं उस इमेज को अपने मन में धारण करके उस पे इमेजिन करता रहता हूँ। In every situation, हर सिचुएशन में in every like whatever I go through, मैं जिस भी सिचुएशन से जा रहा हूँ I try to see what God is showing. मैं कोशिश करता हूँ उसको देखने की जो परमेश्वर दिखा रहा Because है। in my heart it is clear. मेरे मन में एक बात क्लियर If है, I see it, अगर मैं देखूंगा I will get it. मैं पाऊंगा। What you see. आप क्या देखते For हैं? all the land which thou seest, तो जो भी भूमि तू देखता है to you I will give it. वो मैं तुझे दे दूंगा। So first thing what we have to do, तो पहली चीज हमें क्या करने की जरूरत every है? promise we need to see it. हर वो जो वादा हमारे साथ हुआ है उनको देखने की जरूरत है। Every prophecy we need to see it. हर एक भविष्यवाणी जो हुई है उसको देखने की जरूरत है। Every promise in the word of God we need to see it. जो भी यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमारे लिए वादे हैं उनको देखने की जरूरत है। Natural mirror will show you are sick. जो आपका समाज का जो नेचुरल मिरर है ये आपको दिखाएगा कि आप बीमार हैं। This mirror will show you you have lack. आपको ये दिखाएगा कि आपके पास कमी है। Natural mirror will show you you are not able to do it. जो वास्तविक दर्पण आपको दिखाएगा कि आप ये But कर नहीं पाएंगे। mirror of the word of God पर परमेश्वर की वचन का will दर्पण always show you what you can do it. वो आपको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। It will always show you who you are. वो आपको दिखाएगा कि आप कौन हैं। You are not a worm, आप कीड़े नहीं but हैं, you are a giant. आप एक दानव You are हैं। not a worm. आप कीड़े नहीं हैं। Say to your neighbor, I am not a loser, अपने आप से अपने पड़ोसी से कहिए मैं हारा हुआ but नहीं I हूँ, am a conqueror. मैं जीता हुआ हूँ। I am not a loser, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, but I am successful. मैं सक्सेसफुल हूँ। But your experience will tell, Arey, I have seen the failure. पर आपका अनुभव आपको कहेगा कि मैं फेलियर देखा I है, have seen the lack. मैंने कमी को देखा है। I want you to encourage trust in the word of God. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस परमेश्वर के वचन पे If he विश्वास can do it कीजिए। in my life, अगर वो मेरी जिंदगी में काम कर सकता how है, much more he can do it in your life. आपकी जिंदगी में उससे बढ़ के कितना Because कर God सकता is true. है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, His word is true. उसका वचन सच्चा है। What he says, he is able to finish it. जो वो कहता है वो उसको करने की सामर्थ्य Say रखता what है। God says, कहिए जो परमेश्वर कहता है he is able to fulfill it. उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। For my life, मेरी जिंदगी के लिए, for my life, मेरी जिंदगी के लिए say it as you believe it. ऐसे कहिए जैसे आप विश्वास करके बोल रहे If हैं। मैं आपके जगह पे होता ना, I would have stand up and said it. What God says, I will believe it. अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं खड़े होकर इस बात को बोलता कि जो परमेश्वर मेरे लिए कहता है वो होगा। Because this word is for me. क्योंकि ये वचन मेरे लिए है, This is going to benefit me. ये मुझे फायदा देगा, This is going to take me to next level. ये मुझे अगले स्तर पर लेके जाएगा। Because word of God has power. परमेश्वर के वचन में So सामर्थ्य है। say इसको कहिए what God says, जो परमेश्वर कहता है I will see it. मैं उसको देखूंगा। What God declares, जो परमेश्वर की घोषणा करता I है will see it. मैं उसको देखूंगा। God sees me healthy. परमेश्वर मुझे हेल्दी देखता I है, am healthy. मैं हेल्दी हूँ। God sees me strong. परमेश्वर मुझे स्ट्रॉन्ग देखता I है, am strong. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। God sees me prosperous. परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर देखता I है, am prosperous. मैं प्रॉस्पर हूँ। God sees me victorious. परमेश्वर मुझे जीता हुआ देखता I है, am victorious. मैं जीता हुआ हूँ। God sees me blessed. परमेश्वर मुझे ब्लेसेड देखता I है, am blessed. मैं ब्लेसेड हूँ। God sees me holy. परमेश्वर मुझे पवित्र I देखता am है, holy. मैं पवित्र हूँ। God sees me righteous. परमेश्वर मुझे धार्मिक देखता I am है, righteous. मैं धर्मी हूँ। God sees me overtaking in lands. परमेश्वर मुझे देखता है मैं जगहों को ले लूंगा, I am overtaking lands. मैं ले रहा हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Amen. से आमेन। Hallelujah. And I believe और मेरा विश्वास है as you trust in the word of God, मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता your हूँ, life will not be the same. आपका जीवन ऐसा हमेशा के लिए सेम Your नहीं life रहेगा। will not be the same. आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। Let's open Genesis 15 verse 5. उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय उसका 5वां Let's पद, read from verse 1. हम पहले पद से पढ़ेंगे। After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is the Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born is my house is mine heir. And behold,
the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, Look now towards the heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. We'll read it in Hindi. इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। See, just imagine Abraham is sitting, सोच के देखिए, अब्राहम बैठा है and he has child already. He already has child. उसके पास ऑलरेडी बच्चे हैं। And when God comes to him, और जब परमेश्वर उसके पास आते हैं and God says, और परमेश्वर कहते हैं, Son, come from your body will be your head. तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। See, God is saying to him, परमेश्वर उसे कह रहे हैं, isn't it enough for Abraham to believe it? उसके लिए काफी नहीं इस बात को विश्वास करना? Isn't it enough for Abraham to see the God's goodness? इतना काफी नहीं था अब्राहम के लिए विश्वास करना परमेश्वर की Because भलाई God is पर? already declaring it. क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी इस बात को की घोषणा कर रहे हैं, God is already declaring it. वो ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर रहे हैं। But let's open verse 5, what it says. 5वें पद को देखें, उसमें क्या लिखा है। And he brought him forth abroad and said, Look. और तब उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके। See, God said, your son, your hair is going to come out of you. परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश तुझसे आएगा। But verse 5 it says, पर 5वें पद में लिखा है, God took him out पर परमेश्वर 5वें पद में लिखा है, परमेश्वर उसको बाहर ले आए and asked him, Look. और उसको कहा, देख। Say, Look. कहो, Say, देख, Look. देख, Now towards the heaven. आकाश की ओर देख। What God is saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Just imagine Abraham is seeing stars. आप इमेजिन करिए कि अब्राहम तारों को देख See, रहा है। Abraham, just look at this. Abraham comes out of that tent अब इमेजिन करिए, अब्राहम उस टेंट से बाहर निकल आया and God said, Look at heaven. और वो कह रहे हैं कि ऊपर आकाश की ओर देख। So Abraham is looking at heaven अब and अब्राहम stars. ऊपर देख रहा है। So Abraham is looking at stars. अब अब्राहम तारों की ओर देख So रहा है। how I see, मैं इसको कैसे देखता हूँ? what God asked him? परमेश्वर ने उसको क्या बोला? To see the stars. तारों को देख। So when Abraham was seeing the stars, तो जब अब्राहम तारों को देख रहा है, just imagine stars are saying Papa. सोचिए कि तारे उसको पापा कह रहे हैं। Stars are saying Papa Abraham, Papa Abraham, Papa Abraham, तारे Papa Abraham, Papa Abraham. आमीन। Can you see this? क्या आप देख पा रहे हैं? Why God asked him to see up? क्यों परमेश्वर ने कहा कि The ऊपर word देख? of God is enough. परमेश्वर का वचन काफी था, God wanted him to behold what he's gonna do it. पर परमेश्वर चाहते थे कि वो उसको देखे जो उसकी जिंदगी The में होने को stars था। might have said he's gonna be our father. और हो सकता है कि तारे ये बात कह रहे हो कि ये हमारा पिता होगा। They were showing that like this many numbers will be your sons. वो कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे जो नंबर हैं ये तेरे बेटे बेटियां होंगे। And then God said, और तब परमेश्वर ने कहा, so shall your descendants be. और उन्होंने कहा, इतने तेरा वंश होगा। When Abraham saw in the heaven, जब अब्राहम ने स्वर्ग की ओर देखा, the image was formed inside of him. उसके अंदर वो एक इमेज बननी शुरू हुई। Before the Sarah was pregnant, इससे पहले कि सारा प्रेग्नेंट होती, he was pregnant with what God is showing. वो उस दर्शन से प्रेग्नेंट हुई। He was seeing what God was showing. वो देख रहा था जो परमेश्वर उसको दिखाने So पड़ते। when God gives the word and we receive the word, तो जब परमेश्वर वचन देता है और जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं, we need to see it. हमें उसको अपने अंदर देखने की We जरूरत need है। to see it. उसको देखने की जरूरत And we है need to form the image inside of और us. हमारे अंदर उस इमेज को बनते रहने देने की जरूरत For है। your promise to fulfill, आपके जो प्रोमिसेस हैं वो कैसे पूरे होंगे? have you seen the image of it? क्या आपने उसकी एक इमेज को देखा है? Have you seen the image of it? आपने क्या उसको देखा है? To see the God's blessing overflowing in your life.
परमेश्वर की आशीषों को अपनी जिंदगी में ओवरफ्लो देखने के Have लिए your eyes and have your eyes has beholded it? क्या आपकी आंखों ने उस दर्शन को अपने अंदर रखा है? Have you done that? क्या आपने ऐसा किया है? It's not like a mantra. ये कोई मंत्र नहीं है. It's just you imagine and then things will happen. ऐसा नहीं है कि आप कुछ देखने लगेंगे और वो आपके लिए हो जाएगा. It's just seeing the fulfillment of God's word in your life. ये सिर्फ एक तरीका है परमेश्वर के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखने It's के not लिए. a technique. ये कोई टेक्निक नहीं है. It's what God has said it. ये जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है I start seeing it. मैं उसको देखना शुरू करता हूँ. And when you start seeing it, और जब आप उसको देखना शुरू करते हैं, I believe मेरा विश्वास है you will not see depression, आपकी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं आएगा, anxiety. एंजाइटी नहीं You will होगी, not trust in the natural, आप नेचुरल में विश्वास नहीं but your करेंगे, eyes will always behold the supernatural. आपकी आंखें हमेशा And सुपरनैचुरल when लगी your eyes रहेंगी. will behold the supernatural, और जब आप सुपरनैचुरल की ओर you will देखेंगे, see the supernatural breakthrough. आप सुपरनैचुरल ब्रेकथ्रू Because expectation are like a breeding ground. आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो आप उम्मीद करते हैं वो आपके लिए उपजाने वाली जमीन की तरह काम करती है. So when you see it, जब आप देखते हैं, you build a ground of expectation. आप एक जमीन तैयार करते हैं जिसमें आप उम्मीद करते हैं. You build the breeding ground for miracles. आप एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जो आपके लिए चमत्कारों को उत्पन्न करती है. So for your life, तो आपकी जिंदगी के the लिए healing you want to receive, जो चंगाई आप अपनी जिंदगी के लिए चाहते have you हैं, seen from the word of God? क्या आपने परमेश्वर के वचन से उसको देखा है? Have you seen in the word of God that you're healthy and strong? आपने परमेश्वर के वचन में देखा है कि आप हेल्दी हैं, आप That, स्ट्रांग हैं? have you seen yourself that you will never see any sickness? क्या आपने अपने आप को ऐसे देखा है कि आप में कोई बीमारी नहीं है? It was very important बहुत जरूरी है ये, that you see the word of God in your life. आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में देखें. It is the word ये वचन है when you see जो आप देखते हैं, that brings life into your life. जो आपकी जिंदगी में जीवन डालता है. Let's open Ephesians 3:20. मेरे साथ खोलिए इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 20वां पद. Ephesians 3:20. It says, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Let's open NIV translation. Now to him who is able to do immeasurably more than what we ask or imagine, according to his power that is at work within us. ठीक है. अब वो जो हमारी समझ से बाहर, हमारे सोचने से बाहर हमारे लिए कर सकता है, अपनी उस सामर्थ्य से जो उसके अंदर काम करती है. What it says? Ask or imagine. जितना हमने मांगा, जितना हमने सोचा, उससे भी बाहर. It says, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. उस सबसे ज्यादा जितना हमने मांगा या जितना हमने सोचा, उससे भी ज्यादा. Two things करने he की is सामर्थ्य. saying, ask and imagine. दो चीजें वो कह रहे हैं, मांगना और देखना, It इमेजिन means करना. what you ask, you should see it. इसका मतलब जो आप मांगते हैं आप उसको देखने वाले होने When चाहिए. you pray for the healing, जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना you करें, should see yourself as a healthy. आप अपने आप को ऐसा देखें कि आप चंगे When हैं. you see the lack, जब आप कमी देखते हैं, you need to see yourself as a prosperous. आपको अपने आप को प्रॉस्पर होके देखना When चाहिए. you see jobless, जब आप देखें जॉब नहीं है, you need to see yourself as a great businessman. अपने आप को आप ऐसे देखें जैसे कि आप एक बहुत When बड़े you बिजनेसमैन see हैं. yourself as at lowest, जब आप अपने आप को बहुत नीचे पे होते हैं, जब आप you need to go to the word of God आपको परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत and है say what God has made you. और वो कहिए जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है. God has made you holy nation, परमेश्वर ने आपको एक पवित्र नेशन a बनाया है, royal priesthood. आपको एक याजकों का He समाज has बनाया made है, you king. उसने आपको राजा He बनाया है, has given you all the powers, उसने आपको सारी सामर्थ्य all दी the है, authority, सारे अथॉरिटीज दी all है, the dominion, सारा अधिकार दिया है. everything pertaining to life. जो कुछ भी जिंदगी से संबंधित है, He has already given to you. सब कुछ आपको दिया है. But your life will say, पर आपका जीवन ये कहेगा nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा. But we don't trust in our life. पर हम अपने जीवन पर विश्वास नहीं More करते. than our life, we trust in the Lord. हम अपने जीवन से ज्यादा परमेश्वर पर More विश्वास than करते हैं. anything, we trust in the word of God. हम किसी भी चीज से ज्यादा विश्वास परमेश्वर के वचन पर And करते हैं, He is faithful. और वो विश्वास योग्य है. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. Let's and see how God sees us. देखिए परमेश्वर हमको कैसा Let's देखता open है. Isaiah 41, मेरे साथ निकालिए यशाया, उसका 41वां पद, verse 19. Let's open NIV. उसका Isaiah 19वां पद. 41, 19.
19वां पद। See how God sees our life. देखिए परमेश्वर हमें कैसा देखता है। It says, I will put in the desert the cedar and the acacia, the myrtle and the olive. I will set pines in the wasteland and the fir and the cypress together. मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, तिधार वृक्ष और सीधा सनोवर इकट्ठे लगाऊंगा। Let's open verse 18. वर्स 18। I will make rivers flow on barren heights. मैं Let's highlight barren heights. मुंडे टीलों में भी नदियों और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। And the spring within the valleys. I will turn the desert into, just highlight the valleys. I will turn the desert into pools of water. Highlight the desert. And the parched ground into springs. Highlight the parched ground. So 4 things it is talking. ये 4 चीजों के बारे में बात कर The रहा है। high places, the barren heights, ऊंची जगहें जहाँ पर कुछ भी नहीं है, desert places, जंगल की मैदान, valley, वैलीज, घाटी and dry land. और सूखी जगह। Have you seen yourself in this season ever? कभी आपने अपने आप को इस सीजन में पाया है? That way you see like a desert, no supply is flowing. और आप देख रहे हैं ऐसा मरुस्थल जैसा जहाँ पर कुछ भी नहीं है। You see no fruit. आप देख रहे हैं कोई फल नहीं है। You see valley. आप देख रहे हैं कि घाटी है। I am down. There is no one to help. मैं काफी नीचे हूँ, यहाँ पर कोई सहायता नहीं है। And there is dry land. और सूखी जगहें, Nothing is flowing. Nothing is showering on the land. कुछ भी वहाँ पर बह नहीं रहा, कुछ भी वहाँ पर नहीं हो रहा। To every situation, how God sees it. हर सिचुएशन में परमेश्वर इसको कैसे देखता है? What He is saying. वो क्या कहते हैं? I will make rivers flow on barren land. वो कह रहे हैं वो ऐसी निर्जल जगहों पर भी मैं नदी को बहलाऊंगा। Over every barren situation, हर वो जो जगह जहाँ पे उपज नहीं है, what God is saying. परमेश्वर क्या कहते हैं? He will make a rivers flow. वो वहाँ पर नदियों को बहाएंगे। It's like in the entire scripture, He's all saying, I will. वो पूरे वचन में बार बार कह रहे हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। So for your life, the answer, He's gonna do it. आपकी जिंदगी का जवाब ये है कि वो करने पर है। Solution is from Him. परमेश्वर की तरफ से आपके लिए जवाब आएगा। Answer is from Him. जवाब उसकी ओर से है। So whenever you see yourself as a barren, जब अपने आप को आप ऐसा देखें कि कुछ उपज नहीं रहा, what God is saying, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? rivers. नदियां। It's not saying river. वो ये नहीं कह रहा नदी, It's saying rivers. नदियां। That's why in John it says, out of you I will flow, the rivers of living water will flow. इसलिए यूहन्ना में लिखा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बह He's not उठेंगी। saying I will give you water. वो ये नहीं कह रहा मैं पानी दूंगा, He's saying rivers. वो कह रहा नदियां दूंगा। Continuous supply. ऐसा जो लगातार चलता रहता है, Continuous flow. जो लगातार बहता So रहता है। whenever you see yourself as a barren, nothing is happening. और जब अपने आप को ऐसा देखें कि कुछ नहीं हो रहा है, You need to see आपको देखने की the जरूरत है। rivers of living water is flowing from you. आपको देखने की जरूरत है कि जीवन का जल आप में से When बह you रहा है। see yourself as a miserable situation, जब आप अपने आप को ऐसी जगह पर देखें जहाँ कुछ you नहीं हो need to रहा, lift your eyes and see God, आपको अपनी नजर उठाकर परमेश्वर को देखने की who जरूरत है। says, I will make rivers flow. और वो कहता है कि मैं नदियां बहाऊंगा। And next is spring within the valleys. और वो कह रहा है कि सोते बहाऊंगा On मैदानों में every सोते। valley, what God is saying. हर घाटी के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? In every situation where is you are down, हर वो जगह जहां आप बहुत नीचे में हैं, I will give a spring. मैं वहां पर सोते बहाऊंगा, I will give spring. मैं वहां पर झरने बहाऊंगा। And I will turn the desert into pools of water. और जहां पर पानी नहीं है, जो मरुस्थल है, मैं उसको पानी के पूल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। When you see yourself जब आप अपने आप को देखते हैं like a desert, एक ऐसी जगह पर जहां पर the कुछ answer नहीं है, is pools of water. वो कह रहा है कि ताल, उस निर्जल जगह पर ताल बहाऊंगा। The answer is pools of water. कह रहा है पानी के ताल। And the parched ground into springs. और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर मैं सोते लेकर आऊंगा। So why God is saying this? परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है? Because God wants to remind you this is your reality. क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी रियलिटी याद दिलाना चाहते हैं। Do you think desert place when water will flow, it will be like a desert? आपको लगता है कि जब मरुस्थल जगह पर पानी बहेगा तो वो मरुस्थल रहेगा? Or any barren heights when rivers will flow, it will be like a barren?
ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं उपजता, जब वहाँ पर नदियाँ बहने लगेंगी तब वो वैसे ही रहेगा. Just imagine the barren place and now rivers are flowing. आप सोच के देखिए ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नहीं उपजता, वहाँ पर नदियाँ बह रही The हैं. desert, the pools of water is there. जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर पानी ही पानी है. The supply is there. वहाँ पर सप्लाई. That is your life which God has called you. और ये आपका जीवन है जो परमेश्वर ने बुलाया That है. is your identity which God has called you. ये आपकी वो पहचान है जिसके परमेश्वर ने आपको That बुलाया is your है. destiny which God has called you. ये वो आपकी डेस्टिनी. God has not called you to cry or beg. परमेश्वर ने आपको रोने के लिए या भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया है. God will never call you to beg. परमेश्वर ने आपको कभी, परमेश्वर नहीं चाहेगा आपको कि आप कभी भीख मांगे. But God has called you to see the rivers of water flowing through you. पर परमेश्वर चाहता है कि आप देखें कि आप में से जीवन की नदियां बहें. That God has called you to see the supply all the days of your life. परमेश्वर ने आपको बुलाया था कि आप अपने पूरे जीवन भर उस सप्लाई को देख God सकें. has called you to see His help all the days of your life. परमेश्वर ने आपको बुलाया था कि आप परमेश्वर की उस सहायता को अपनी Let's जिंदगी में open निरंतर verse देख सकें. 19. 19वां पद देखेंगे. I will put in the desert the cedar and the acacia. मैं जंगल में देवदार और बबूल लगाऊंगा. What is the cedar? ये देवदार का पेड़ क्या है? What is the cedar? किसी को पता? What is the quality of devdar? देवदार के पेड़ की क्या खासियत होती है? Huh? लंबे होते हैं. Okay? You might know it. What is the quality of cedar? The best wood. It means in this cedar wood, no worms and no maggots can affect. देवदार की खास बात ये होती है कि वहां पर कोई भी कीड़ा नहीं लग सकता. वो झाड़ को कीड़ा लगता ही नहीं है. So when God called you, तो जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, it says, I will put in the desert the cedar and the acacia. वो कह रहा है कि मैं जंगल में देवदार और बबूल को How God लगाऊंगा. is seeing your life परमेश्वर आपके जीवन को कैसे देखता है? over that barren place. उस ऐसी जगह पर जहाँ पे कुछ He नहीं will होगा flow the सकता, water नदियां बहती हैं, and He will put the cedar और वो वहां पर देवदार का and पेड़ He will लगाएगा. put something और वहां पे कुछ ऐसा लगाएगा that enemy cannot destroy. जिसको शैतान खत्म नहीं कर सकता. He will put and give something वो आपको कुछ ऐसा लगा के कुछ no देगा one can destroy it. जिसको कोई खत्म नहीं कर He will सकता. give you best. वो आपको बेस्ट देगा. He will give you best. वो आपको बेस्ट देगा. And that is the life which God has for you. और ये वो जिंदगी है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है. And what is the quality of cedar? और देवदार की एक और खास बात क्या होती है? It releases the gum. वो गम प्रोड्यूस करता है, उसमें से And गौन through that निकलता है. gum it produces the fragrance. और उस गौन में से खुशबू निकलती है. It produces the fragrance. उसमें से खुशबू निकलती है. So when God gives, तो जब परमेश्वर देता है He will give something. वो ऐसा कुछ देगा. When God sees, जब परमेश्वर देखते He हैं sees you like this, वो आपको ऐसा देखते that हैं you are spreading the fragrance. कि आप हर जगह खुशबू फैला रहे Not हैं. only you are enjoying it, आप सिर्फ उसका, आप खुद ही उसको एंजॉय but नहीं कर रहे everyone हैं. who comes near you, they are enjoying it. जो भी आपके आसपास आते हैं वो भी उसको एंजॉय करेंगे. It will not affect ये आपको अफेक्ट नहीं and करेगा. it will produce the fragrance. वो आप में से खुशबू को प्रोड्यूस करेगा. And it says, और I ये will कहता है- put in the desert cedar and acacia. और वो कह रहे हैं कि मैं जंगल में देवदार, बबूल और मेहंदी लगाऊंगा. This is the same wood which God told Moses to build an ark. और जो नाव बनाने के लिए, नहीं, सॉरी, आग बनाने के लिए जो परमेश्वर ने कहा था मूसा को लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए, वो यही लकड़ी थी. And same on that he had put the gold. और उसी के ऊपर उसने सोना लगाया था. So when God gives, तो जब परमेश्वर देता है He always gives best. वो हमेशा अच्छा Over देता है. every dry place, हर वो सूखी जगह पर, over every valley, हर वो तराई पर, over every barren place, हर वो जगह जहाँ उपजाऊ नहीं है, over every parched ground, हर वो जो जगह निर्जल है, how God is saying, गॉड क्या देखते हैं? rivers of water, परमेश्वर देखते हैं बहती हुई नदियाँ, pool. पानी के This is what God is saying. ऐसा है जो परमेश्वर Have you देखता है. seen for yourself? क्या आप अपने आप के बारे में ऐसा देख पा रहे Have you हैं? seen for unanswered prayers? क्या आप अपनी उन प्रार्थनाओं के बारे में जो अनआंसर्ड ऐसा देख पा रहे हैं? Have you seen for your future? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में, Have you seen for your children's? क्या आप अपने बच्चों के बारे में ऐसा देख पा रहे Have हैं? you seen for your destiny? क्या आप अपनी डेस्टिनी के बारे में ऐसा देख पा रहे हैं? So just take few minutes. कुछ समय लीजिए. And every negative image which is talking to you, हर वो नेगेटिव इमेज जो आपके मन में आपसे बात कर रही है, let just remove that image. उस इमेज को हटा दीजिए. Let put the image of the word of God परमेश्वर के वचन की छवि वहां डाल over दीजिए. your life. अपनी जिंदगी पर Speak the life.
जिंदगी को बोलिए, over your situation. अपने सिचुएशंस पर। Just take these few minutes and close your eyes अपनी आंखों को बंद करें, इस समय को लीजिए and just put the image of the word of God. परमेश्वर के वचन की इमेज को वहां पर रख That दीजिए will of God is the fruitfulness. कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं और ये परमेश्वर की The will of God is the fruitfulness. परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे लिए फलदायी है। The will of God is the good. परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए अच्छी है। The will of God is the health. परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है कि हम चंगे रहें। Your business the market will say business will not grow. मार्केट कहेगा कि आपका बिजनेस नहीं चल सकता। Remove that image. वो छवि अपने मन से हटा Put दीजिए। the image that righteous will flourish. अपने अंदर वो छवि डाली जहाँ लिखा है कि धर्मी बढ़ेंगे। Your relatives will say your health is not good. आपके संबंधी आपसे कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं You है, will not live longer. आप ज्यादा नहीं जी पाएंगे। Remove that image. उस इमेज को हटा दीजिए Put the image. और वहां पे इमेज डालिए Righteous will live long. धर्मी लोग लंबा जीवन जिएंगे। Your doctor will say आपके डॉक्टर कहते हैं your health is not good. आपकी सेहत अच्छी नहीं The है, levels of body is not right. आपका जो बॉडी का लेवल है ठीक नहीं Just है। remove that image उस इमेज को हटा दीजिए, and put the image of the word of God परमेश्वर के वचन की इमेज को वहां on the डालिए cross. कि क्रूस पर For every cell of my body, मेरे शरीर के हर अंग के for लिए, every part of my body, मेरे शरीर के हर Jesus has paid. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। You are not seeing a favor. आप कोई फेवर नहीं देख रहे हैं, Remove that image from your mind. वो वाली इमेज को भी हटा दीजिए। Put the image of God's favor upon your life. परमेश्वर के फेवर की इमेज को वहां पे ले आइए। Just begin to pray. प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Begin to remove that negative images and put the right images of word of अपनी God. जिंदगी से वो सारी नेगेटिव छवियां हटाकर परमेश्वर के वचन पर आधारित सारी पॉजिटिव बातें वहां ले आइए। Thank you, Father, in the name of Jesus, thank you, Father God. Lord, I take the authority and I curse every negative image. Yes, Father God. It will not be in our people's life. Every thought of doubt, every thought of disbelief, every negative thought of failure, thought of sickness, I command you in the name of Jesus, live. And Lord, we fill that gap with the word of God, with what God says we are, with what Lord has made us. So Father, every images which is troubling my people, in the name of Jesus, I remove it by your power. Leave them. Let the good thoughts, the plans of God be in the mind of your people. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, thank you, Father Amen. God. Thank you, Jesus. Yes, Father. Amen. Let's open 2 Corinthians 4:18. दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 18वां पद। Now we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। What Apostle Paul is saying? पौल यहाँ क्या कह रहे हैं? We do not look at the things what is seen. हम उन चीजों को नहीं देखते जो देखी हुई हैं। What Apostle Paul is teaching us? हमें यहाँ पर पौलुस क्या सिखा रहे हैं? To not see the things which are seen. उन चीजों को मत देखो जो दिखती हैं। Are you doing that? क्या हम वही कर रहे हैं? Are you doing that? क्या आप वही कर रहे Are हैं? you seeing the seen thing and believing? जो दिखता है आप उसको देख कर विश्वास कर रहे हैं, Or you are not thinking, you are not fixing your eyes on things which are seen. और अपनी आंखों को उस पर फिक्स नहीं करें जो नहीं दिखती हैं। So what Paul is saying? पौलुस क्या कहते So हैं? we fix our eyes not on what is seen. हम अपनी आंखों को उस पर फिक्स नहीं करते जो दिखता है। It means natural mirror is showing. इसका मतलब जो नेचुरल मिरर है वो जो दिखा रहा है, Physically I am feeling the pain. मुझे अदरवाइज फील हो रहा है कि मुझे पेन है, Physically I am seeing the sugars level are not right. मुझे दिख रहा है कि मेरा शुगर का लेवल ठीक नहीं है। But what Paul is saying? पर पौल क्या कहते हैं? We fix our eyes not on what is seen. पर हम अपनी आंखों को उस Paul is पर, saying, I will not see what is this mirror is showing. वो कह रहे हैं मैं अपनी आंखों को अनदेखी चीजों पर फिक्स करता हूँ, मैं उसको नहीं देखूंगा जो मुझे ये संसारिक मिरर दिखा रहा है। I see myself like old. Body parts are not working. मैं अपने आप को इस शीशे में ऐसा देखता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। But what Paul is saying, पर पौलुस क्या कहते I हैं? do not see. पर मैं इसको नहीं In देखूंगा। life of Paul, पौलुस की जिंदगी this में natural mirror
ये स्वाभाविक might, शीशा might have shown him he is murderer. उनको दिखाता होगा कि तू एक हत्यारा है। This mirror, natural mirror, ये जो स्वाभाविक शीशा है might have shown that he has done very wrong. दिखाता होगा उसको कि उन्होंने बहुत गलत किया है। What he is saying, पर वो क्या कहते I हैं, do not see what is seen, मैं उसको नहीं देखूंगा जो दिखता है, but what is unseen. पर जो नहीं दिखता है। So what is saying, I do not see the sickness which is in my body. वो कहना चाह रहे हैं कि मैं उसको नहीं देखूंगा जो बीमारी मेरे अंदर है। So whole world always see what is seen. पूरा का पूरा संसार वही देखता है जो दिखता है। We also see sometimes what is seen. हम भी वही देखते हैं जो दिखता है। But God has called us to see what is unseen. पर परमेश्वर ने हमको बुलाया है वो देखने के लिए जो नहीं दिखता है। Don't look at what is seen. उस पे नजर मत रखो जो दिखता है, Look at what is not seen. पर उन बातों पर जो अनदेखी हैं उस पे नजर रखो। See, what is seen can be changed. जो दिखता है वो बदल सकता But है, what is not seen is eternal. जो नहीं दिखता वो सदा के लिए It है। says, for what is seen is temporal. लिखा है जो दिखता है वो कुछ समय का है। It means the things which you are seeing, इसका मतलब जो आप देख रहे हैं, the things which you are going through, जिन बातों से आप होकर जा रहे they हैं, are temporal. वो टेम्परेरी है, But they can be changed. वो कभी भी बदल सकती हैं। Right? Right? Are you with me? Yes. The things which you are seeing, जो चीजें आप देख रहे हैं they are temporal. वो कुछ समय की हैं, They can be changed. वो कभी भी बदल सकती हैं। So, but what is unseen पर जो अनदेखा है is permanent, वो हमेशा के लिए is है, eternal. वो हमेशा का So है। what God shows you जो परमेश्वर आपको दिखाता is है eternal. वो हमेशा का है। Health is not for one day. अच्छी हेल्थ एक दिन के लिए नहीं It's है, not for 2 days. वो 2 दिन के लिए नहीं It's है, not for only week. वो एक हफ्ते के लिए नहीं है। Health is for eternal. जो स्वास्थ्य है वो हमेशा के लिए है। Good life and blessings are not for one day. अच्छा जीवन और आशीषें एक दिन के लिए नहीं It's है, for eternal. ये हमेशा के That लिए all है। the days of your life, आपकी जिंदगी के you सारे will दिनों के see लिए the goodness of God. आप परमेश्वर की भलाई You को will देखेंगे, sing for His mercy. आप उसकी मर्सी को देखेंगे। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So what He's saying? वो क्या कह रहे हैं? So fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporal, but what is unseen is eternal. तो हम तो अपनी और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी But रहती हैं। it means everything which you are seeing in your life, इसका मतलब जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, everything which is not working in your life, जो भी आपकी जिंदगी में काम नहीं हो पा रहा everything you can feel it. है, हर जो चीज आप महसूस कर रहे हैं It can be changed. वो बदल सकती है, It can be changed वो बदल सकती है by seeing unseen things, अनदेखी चीजों को देखने से, by seeing in the Word of God, परमेश्वर के वचन में देखने by से, seeing in the mirror of the Lord. परमेश्वर के दर्पण में देखने से। Every prophecy, हर भविष्यवाणी, every promise हर वादा will manifest वो आपकी जिंदगी में पूरा when you होगा start seeing it. जब आप उसको देखना शुरू When करेंगे। God called you for nations, जब आपको परमेश्वर ने नेशंस के लिए बुलाया है, when you see that, जब आप उसको देखना शुरू करेंगे, you will not cry for visa. फिर आप वीजा के लिए क्राई नहीं करेंगे, You will not cry for the application. फिर आप एप्लीकेशन के लिए नहीं रोएंगे, You will not cry how things will happen. आप इस बात के लिए नहीं रोएंगे कि चीजें कैसी होंगी। When you see it, जब आप उसको देखेंगे, the only thing will come thanksgiving. आपके अंदर से बस एक चीज आएगी, वो है The thanksgiving। only thing will come praise आपके अंदर से बस एक चीज बाहर निकलेगी, वो है स्तुति for करेगा। your life. आपकी जिंदगी के लिए When you start seeing it, जब आप इसको देखना शुरू करते I हैं, believe मेरा विश्वास you है will never come to pastor to ask for prayer. आप पास्टर के पास नहीं आएंगे प्रार्थना करवाने You के will लिए। never come to any brother ask for prayer. Lord, please pray for this. आप किसी भी चर्च के किसी आदमी के पास नहीं आएंगे बोलने के लिए मेरे But प्रार्थना you will करो, have the faith. क्योंकि आपका विश्वास है। The thanksgiving will burn out of your heart. आपके अंदर से वो धन्यवाद की The बात निकल praises will लगेगी। burn out of your heart. आपके अंदर से वो स्तुति धन्यवाद Because निकलने your लगेगा, eyes has already seen it. क्योंकि आपकी आंखों ने ऑलरेडी उसको देख For लिया है। Abraham, अब्राहम के लिए he has seen it. उसने उसको देख लिया, God asked him to come out. परमेश्वर ने उसे कहा He बाहर आ, has seen the stars. देख इन तारों को देख, He's just imagining, oh my God, so many kids. और वो इमेजिन कर रहा है इतने सारे बच्चे। 95 years, 95 इयर्स, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Enter my youth, पूरे उसकी जवानी में nothing happened. कुछ नहीं हुआ, But he is now seeing. पर वो देख रहा है। God said it, उसको परमेश्वर ने I कहा am just seeing it. और मैं वो देख रहा हूँ। In my business, मैं अपने बिजनेस में till now nothing कुछ happened. भी नहीं हुआ अभी I तक। did not see the great move. मैंने कोई ग्रेट मूव नहीं देखा, I did not see great increase. मैंने कोई इंक्रीज नहीं Till देखा। now,
अभी तक In my workplace, मेरे वर्क प्लेस no पे increment. कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, Nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा। Till now, अभी तक from childhood, बचपन से sickness is there. बीमारी है, Nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा। Till now, अभी तक in everywhere where I go, जहाँ भी मैं जाता I हूँ have seen the failure. मैंने सिर्फ फेलियर But देखा what है। God is saying और now, परमेश्वर का वचन क्या God कहता is saying, I have called you, कह रहा है मैंने तुझे बुलाया I है, have predestined you, मैंने तुझे पहले से स्थापित किया I है, have chosen you. मैंने तुझे चुना है। You are righteous, तू धर्मी है, you are holy, तू पवित्र है, you are acceptable, तू मेरी नजर में and you will conquer, तुझे मैंने स्वीकार you will किया, तू inherit, जीतेगा, तू उस चीज को पाएगा and you will see the goodness of और तू God. परमेश्वर की भलाई को This is देखेगा। for you. ये आपके लिए है। You will see the healthy life. आप देखेंगे एक स्वस्थ It's जीवन। just now we have to see it. हमें उसको बस देखने We की have जरूरत to है। see we are healthy. हमें बस देखने की जरूरत है We कि हम have चंगे to हैं। see the glory of God is upon me. हमको परमेश्वर की उस ग्लोरी को अपने ऊपर देखने की When जरूरत है। first you start seeing it, जब आप उसको देखना शुरू करेंगे then others will start seeing in your life. और बाकी लोग फिर उसको आपकी जिंदगी में देखना शुरू When करेंगे। you start living it, जब आप उसको जीना शुरू करेंगे then others will start believing in you. तब बाकी लोग उस पर विश्वास करना So शुरू this करेंगे। is what God has called us. तो इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। That the way He has declared, जैसे उसने हमारे लिए घोषणा की है, we need to see it. हमें उसको देखने की जरूरत No है। matter what we go through. कोई फर्क नहीं पड़ता हम किन सिचुएशन से जा रहे हैं। No matter, like Abraham, we have seen the life. हम कोई फर्क नहीं पड़ता अब्राहम को देखा हमने कि उसकी जिंदगी कैसी No थी। one here is older than Abraham. Anyone is there? 90? यहाँ पर कोई More भी नहीं than- है जो अब्राहम से ज्यादा बूढ़ा हो। He has more experience than us. उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। He has seen more than us. उन्होंने हमसे ज्यादा देखा He है। has seen greater prosperity than us. उन्होंने हमसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देखी है। But still, पर फिर भी when God said, पर जब परमेश्वर ने कहा look, देख, He looked at the stars. उसने देखा, He looked at the stars. उसने तारों की ओर देखा, He looked at the star, my son. उसने तारों को देख के सोचा ये मेरा बेटा है, That my son, वो मेरा बेटा है, my son. मेरा बेटा। The stars were speaking to him like a sign. जो तारे थे वो उसके लिए एक चिन्ह की तरह बात कर रहे Which थे। sign are you looking for? आप किस चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं? Which sign you are beholding? आप कौन से चिन्ह को पकड़े बैठे Or हैं? when situation arise, जब सिचुएशंस आती हैं, do you believe negative? Do you behold negative? क्या आप नेगेटिव बातों को पकड़ लेते हैं Or do you see the goodness of God? या आप परमेश्वर की भलाई को Or देखते हैं, do you take the opportunity to praise God? या आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं परमेश्वर की तारीफ करने के लिए? Everything is for you. सब कुछ आपके लिए They है, are speaking for you. वो आपके लिए बोल रहे हैं। Like for Abraham, जैसे अब्राहम को when he देखा, looked at the stars, जब उसने तारों की तरफ he देखा, saw his own sons, उसने अपने बच्चों own की तरफ देखा, daughters, अपनी बेटियों की तरफ देखा, nations. दुनिया को, नेशंस को देखा, When देश he को देखा। saw the sand, जब उसने मिट्टी को देखा, he saw his own sons. जब उसने बालू को देखा है, He saw the nation. उसने देशों को देखा, अपने And बच्चों have को you देखा। seen the life of Abraham? आपने अब्राहम का जीवन देखा है, It has impacted many generations. उसने काफी जनरेशन को इम्पैक्ट Till किया now है। it is impacting. आज के दिन तक वो इम्पैक्ट So कर रहा है। as you behold what word of God is saying, जब आप उस बात को पकड़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, I pray and I believe मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास you करता will हूँ, not die as a mere man. आप You will not die as a normal man. आप एक आम आदमी की तरह नहीं मरेंगे, But you will impact the generation. आप जनरेशन को इम्पैक्ट Your life will impact the generation. आपका जिंदगी, Your nations को ministry will impact- impact the आपकी generation. मिनिस्ट्री, Your business will impact the आपका generation. बिजनेस इम्पैक्ट That is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा He है। is not limited for you, वो आप तक सीमित नहीं है, but for generation and generations to come. पर आने वाली पीढ़ियों के लिए That what Lord will do it. परमेश्वर ऐसा करेगा। Let's open 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18वां पद। Are you learning something? आप कुछ सीख रहे हैं? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? How many are learning? कितने लोग हैं जो सीख रहे हैं? How many are ready to behold, to see? कितने लोग तैयार हैं उसको पकड़ने के लिए और देखने के लिए? It says, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory. Say, me कहिए मैं with unveiled face उघाड़ा शरीर चेहरे से reflect the Lord's glory. परमेश्वर के प्रकाश को प्रकट करूंगा। He is talking and we. उसे बोला हम, It means we also. इसका मतलब हम भी, It means you also. इसका मतलब आप भी, It means you also. इसका मतलब आप भी, We all together. हम सब एक साथ। What we are doing? हम क्या कर रहे हैं? With unveiled faces उघाड़े चेहरे से all reflect the Lord's glory. परमेश्वर के प्रताप को प्रकट कर रहे हैं। What you are doing? आप क्या कर- What you are doing? आप क्या कर रहे हैं? I don't see the glory. I just see. मुझे वो प्रताप दिख नहीं रहा। What he's saying? What you are doing?
आप क्या करें? reflect the Lord's glory. हम परमेश्वर की उस ग्लोरी को अपने चेहरे से रिफ्लेक्ट करते हैं। When you believed in Jesus, जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते the हैं, glory is totally manifested in you. आप वो जो पूरी ग्लोरी है वो आप में आ There जाती is nothing in heaven which you don't have. है। ऐसा Now, कुछ भी नहीं है स्वर्ग में रह गया जो आप तक नहीं पहुंचा है। God has not kept something for him, but he gave everything to you. उसने अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ा, सब कुछ आपको दे When he दिया है। gave son, जब उसने अपना बेटा दिया, entire glory of heaven he gave to you. उसने स्वर्ग की पूरी ग्लोरी को आपको दे And दिया। that's why he says, इसलिए वो कहता है with unveiled faces, जो कवर फेस नहीं है वैसे all कैसे reflect the Lord's glory. परमेश्वर की ग्लोरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और परमेश्वर की महिमा भी कहाँ पे है? हमारे ऊपर है. So what is your calling? तो आपकी कॉलिंग क्या है? To reflect Lord's glory. परमेश्वर की उस ग्लोरी को To रिफ्लेक्ट करना। reflect Lord's glory. परमेश्वर की उस ग्लोरी It's को saying, रिफ्लेक्ट करना। and being transformed into his likeness with ever increasing glory. और अंश दर अंश उसमें बदलते जाते हैं। And उसकी being तेजस्वी transformed into his likeness with ever increasing glory. और उसकी तेजस्वी रूप में अंश दर अंश करके बदलते जाते हैं। Say, I don't only have glory, मैं सिर्फ मेरे पास वो सिर्फ महिमा नहीं महिमा है, नहीं होगी, but I have ever increasing glory. पर वो महिमा उसमें बढ़ती जाएगी। Just imagine, God has not given you only the glory, सोच के देखिए, परमेश्वर ने वो महिमा आपको सिर्फ दी but नहीं the है, glory which he has given to you पर वो जो महिमा परमेश्वर ने आपको दी is है ever increasing. वो बढ़ती जा रही है। All the day, एवरी डे it just increase. वो बढ़ती जा रही It है, just increase. हर दिन बढ़ती जा रही है। Which comes from the Lord who is the Spirit. वो जो परमेश्वर से आती है, जो एक आत्मा है। Open KJV. But we all, with open face, beholding as in the glass the glory of the Lord. और हम एक ओपन फेस से परमेश्वर के उस ग्लास में देख रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर की ग्लोरी है। What is beholding? पकड़ के रखना और देखना। What is beholding? Can somebody? Huh? Behold, देखना। देखना, नजरों में बनाए रखना. What is beholding? Capture something in your eyes। Huh? देखना क्या होता है? Speak. I'm not your teacher. Student जैसे शांत बैठते ना, but that's what I'm feeling. What is beholding? देखना. So what is saying? Now with open face, when you behold, as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. It simply means as you behold, जब आप देखते हैं, you are transformed into what you behold. आप उसमें बदल जाते हैं जो आप देख रहे होते हैं। It says are changed into the same image from glory to glory. हम उसी इमेज में बदल जाते हैं जो महिमा से महिमा की ओर So जाते it's हैं। very important what you behold. तो बहुत जरूरी है देखना कि हम क्या देखते Are हैं। you beholding your past? क्या आप अपने पास को देख रहे हैं, Are you beholding your own experience? या आप अपने एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, Or what are you beholding what you go through? या आप उसको देख रहे हैं जिसमें से आप होकर जा रहे हैं, Or are you beholding your bank account? या फिर अपने बैंक अकाउंट को देख रहे हैं। What you are beholding? क्या देख रहे हैं आप? We are called to behold God's glory. हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की महिमा को देखने के The लिए। glory of God is the word of God. परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का वचन है। We are called to behold the word of God. हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के वचन को देखने As के we लिए। behold the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, we are transforming into the everything what is written about us. हम उसमें बदलते जाते हैं जो इस वचन में लिखा है। And in the word of God, और परमेश्वर के वचन में sickness is not written for you. बीमारी आपके लिए नहीं लिखी हुई है, Poverty is not written for you. आपके लिए गरीबी नहीं लिखी हुई है। It will never happen ऐसा नहीं होगा because it is not written. क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ। It will only happen ये सिर्फ होगा what is written. वही होगा जो लिखा हुआ है। The suffering will not happen सफरिंग नहीं होगी because it is not written. क्योंकि वो लिखी नहीं है। Joy will happen खुशी होगी because it is क्योंकि written. वो लिखी है। That is your life. ये आपका जीवन That है, is your future. ये आपका फ्यूचर है। So are you believe? तो Do you आप believe? क्या विश्वास करते Do हैं? you believe? क्या विश्वास So करते हैं? let's just give Jesus thanks. Let's all arise on your feet. आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं And in this few for some time, और इस थोड़े समय के लिए we are gonna give Jesus praise. हम परमेश्वर को, यीशु We are मसीह को gonna सारी give him thanks. उनको धन्यवाद देंगे, We are सारी महिमा gonna देंगे। give him thanksgiving हम उनको धन्यवाद देंगे because what he has made us. क्योंकि जो उन्होंने हमें बनाया है, That he has not made us sick. उन्होंने हमें बीमार नहीं बनाया He है, has not made us poor. उन्होंने हमको गरीब नहीं बनाया This है। is the good news.
ये सुसमाचार है, This is the good news. ये सुसमाचार है That you are not sick. कि आप बीमार नहीं है, You are not poor. आप गरीब नहीं You है, are not into lack. आप किसी तरह की घटी में But नहीं है, you are like Him. आप उसकी तरह हैं, You are like the one who called you. आप उसकी तरह जिसने आपको बुलाया है, You have the glory of the Lord. आप पर परमेश्वर की महिमा You है, are king. आप राजा हैं, You are called for greater purpose. आप बड़े बातों के लिए बुलाए गए So हैं। let's just give Him best thanksgiving. परमेश्वर को सबसे बढ़िया बलिदान दीजिए, I want धन्यवाद you का। to be free. मैं चाहता हूँ आप फ्री रहें। Your thanksgiving is more powerful than your prayer. आपका थैंक्स गिविंग आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी प्रेज से ज्यादा I इंपॉर्टेंट है। don't know you are understanding this. मुझे नहीं पता आप आपको समझ पा रहे Your हैं या नहीं। praise is more powerful than your prayer. आपकी प्रेजेस आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा पावरफुल हैं। More than many times we come to church, कई बार हम चर्च आते हैं, we just sit. हम सिर्फ बैठते हैं, We just be like this. हम ऐसे बैठ जाते हैं। Just imagine. इमेजिन कीजिए, Just I give 1 crore to Zanuel. मैं 1 करोड़ पे जैनू को देता हूँ, He's in need. वो जरूरत में है He gets 1 crore. और मैं उसको 1 करोड़ पे देता Say हूँ। amen. He gets 1 crore. He'll be like this. उसको 1 करोड़ मिलेगा तो वो ऐसे बैठेगा। See, I need fresh air. I need fresh air, मुझे फ्रेश एयर चाहिए and I'm not getting it. और मुझे वो नहीं मिल रही है, And someone comes to me, और कोई मेरे पास आता है he gives me fresh air. और वो मुझे फ्रेश एयर देता है, तो क्या हम ऐसे I'll be बैठेंगे? like this. So the Lord who gave you the air and the oxygen in your lungs, तो परमेश्वर जिसने आपके लंग्स में ऑक्सीजन दिया है, the आपको God एयर who दिया है, gave you the blood in your veins, जिसने आपकी नसों में खून दिया है, the God who gave you strength in your feet, और परमेश्वर जिसने आपके पैरों में बल the दिया God है, who kept your body parts good, जिसने आपके शरीर को सही रखा है, how much He deserve? कितना डिजर्व करता है How वो? much He deserve our thanksgiving? हमारा थैंक्सगिविंग वो किस हद तक डिजर्व So करता when है? you come, तो जब आप आते हैं, leave your dignity. अपनी अपनी सारी बातों को, अपनी पोजीशन को छोड़ Leave दीजिए, your dignity. अपनी डिग्निटी को छोड़ दीजिए। Leave everything what is holding. आपको जो भी चीज पकड़ के रखती है उसको छोड़ Leave दीजिए। what sister is saying. What she will think. सोच ये छोड़ दीजिए कि वो मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे Leave में। my wife, my husband, what they will think. ये सोचना छोड़ दीजिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या But सोचेगी। with grateful heart, पर बिल्कुल भरे हुए मन से, like a David, दाऊद की तरह, like a David, दाऊद की तरह give him best. परमेश्वर को सबसे Give him उत्तम best. दीजिए, उसको उत्तम दीजिए, Give him best. उसको उत्तम So let's दीजिए। just give Jesus best clap. परमेश्वर को बेहतरीन क्लैप देंगे।